السلام علیکم ناظرین، سیاست ٹی وی کے پرائم ٹائم میں آپ سب کا تہہ دل سے استقبال ہے۔ میں ہوں فرزان احمد۔ سب سے پہلے پیش ہے پرائم ٹائم کی ہیڈ لائنز۔ کانگریس حکومت عوام سے کیے گئے تمام وعدوں پر عمل آوری کی پابند، KCR صرف فارم ہاؤس تک محدود۔ نلگنڈا میں میڈیکل کالج کا افتتاح کرنے کے بعد چیف منسٹر ریونت ریڈی نے عوام کو دلایا یقین۔ انڈین امریکن فورم کی جانب سے شہر حیدرآباد میں ہوا اجلاس، MLC عامر علی خان، پروفیسر کودنڈرام اور دیگر نے کیا خطاب۔ تلنگانہ کے مختلف گروکل اسکولوں میں فوڈ پوائزننگ کے واقعات باعث فکر مندی، دوبارہ ایسے واقعات پیش نہ آئیں۔ ریاستی وزیر پونم پربھاکر کی متعلقہ حکام کو سخت ہدایات۔ وقف ترمیم بل کے مسئلے پر ملک کے کئی عیسائی ارکان پارلیمنٹ مسلمانوں کی حمایت کرنے تیار۔ عیسائی ارکان پارلیمان نے دہلی میں کیتھولک بشپ کانفرنس آف انڈیا کے اجلاس میں کی مسلمانوں کی تائید۔ 2 سال گزر جانے کے باوجود بی جے پی حکومت نے کسانوں سے کیے گئے MSP کے وعدے کو پورا نہیں کیا۔ کانگریس ترجمان سرجیوالا کی مودی حکومت پر شدید تنقید ہے۔ اور شام کے صدر بشار الاسد ملک سے ہوئے فرار، دارالحکومت دمشق میں باغیوں کا داخلہ، ہزاروں افراد نے مرکزی چوک میں منایا جشن آزادی۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیلات۔ شروعات کریں گے تلنگانہ اور حیدرآباد کی خبروں سے۔ چیف منسٹر تلنگانہ ریونت ریڈی نے کہا کہ کانگریس حکومت عوام سے کیے گئے تمام وعدوں کو پورا کرے گی۔ انہوں نے ضلع نلگنڈا میں پرجا پالنا اتسو جلسے سے خطاب کیا، میڈیکل کالج کا افتتاح بھی انجام دیا۔ چیف منسٹر نے کہا کہ تلنگانہ تحریک میں ضلع نلگنڈا کے رول کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ جب بھی ہم نلگنڈا میں قدم رکھتے ہیں، رضاکاروں کے خلاف مسلح تحریک یاد آتی ہے۔ ریونت ریڈی نے کہا کہ کانگریس حکومت نلگنڈا کے 500 دیہاتوں میں پینے کا پانی سربراہ کرنے کا منصوبہ رکھتی ہے اور KCR دور حکومت میں نلگنڈا کو نظر انداز کیا جاتا رہا۔ ضلع کے عوام کی تائید سے کانگریس کے 11 ارکان اسمبلی نے کامیابی حاصل کی۔ نلگنڈا کے رکن پارلیمان نے جنوبی ہند میں سب سے زیادہ ووٹوں کی اکثریت سے کامیابی حاصل کی۔ حکومت نلگنڈا پروجیکٹس کی تکمیل کے لیے 1000 کروڑ روپے جاری کرنے تیار ہے۔ ہم کرشنا ندی سے اس علاقے کو پانی سربراہ کریں گے تاکہ نلگنڈا نہ صرف ریاست بلکہ پورے ملک کا طاقتور ضلع بن سکے۔ ریونت ریڈی نے کہا کہ KCR فارم ہاؤس تک محدود ہو کر رہ گئے ہیں۔ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో చంద్రశేఖరరావు గారు 10 సంవత్సరాలు SLBC టన్నెల్ 44 కిలోమీటర్లు, ప్రపంచంలోనే ఇంత పొడవైన టన్నెల్ ఎక్కడా లేదు। టన్నెల్ బోర్ మిషన్ ద్వారా అత్యంత అధునాతనమైన సాంకేతిక నైపుణ్యంతో ఆ టన్నెల్ ను పూర్తి చేసి నల్గొండ జిల్లాకు దాదాపుగా 3.5 లక్షల ఎకరాలకు నీళ్లు ఇవ్వడమే కాకుండా 500 పైగా గ్రామాలకు తాగునీటిని ఇవ్వడం ద్వారా శాశ్వతంగా ఫ్లోరైడ్ మహమ్మారిని పాతి పెట్టాలి అని ఆనాడు ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసి కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి సొంత ఊరు సుఖేందర్ రెడ్డి గారి ఊరికి కూతవేటు దూరంలో ఉన్న బ్రాహ్మణవెల్లి ప్రాజెక్టును పూర్తి చేసి 1,00,000 ఎకరాలకు నీళ్లు ఇవ్వడం ద్వారా ఆ ప్రాంతాన్ని కూడా సస్యశ్యామలం చేయాలని ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో వైఎస్ఆర్ నుంచి మంజూరు చేసుకున్న ప్రాజెక్టులు 10 సంవత్సరాల తెలంగాణ చంద్రశేఖరరావు పరిపాలనలో ఆ ప్రాజెక్టులు పూర్తి కాలేదు। ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో సమైక్య పాలనలో జరిగిన అన్యాయం కంటే చంద్రశేఖరరావు గారి పరిపాలనలో నల్గొండ జిల్లా నిర్లక్ష్యానికి انڈین امریکن فورم کی جانب سے شہر حیدرآباد میں اجلاس ہوا۔ اس میٹنگ میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے عامر علی خان MLC اور MLC کودنڈرام نے بھی شرکت کی۔ ڈاکٹر جمیل اور دیگر نے بھی اس اجلاس سے خطاب کیا۔ ملک میں جمہوریت کی صورتحال، عوامی امور، کسانوں کے مسائل کے علاوہ دیگر اہم امور پر بھی اظہار خیال کیا گیا۔ اس موقع پر سیاست ٹی وی کے نمائندے سید اسماعیل ذبیح اللہ سے ان افراد نے بات چیت بھی کی۔ Yes, Telangana is the second state which has largest, my friend from Kuwait was telling. Yes, the government of Telangana has a scheme for the Indian workers, for the workers from Telangana who are going outside, and the modalities will come up in, I think, next session of the assembly or probably just before the 2025. So you will get the insurance policies and everything, whatever you are asking with the government. This is the preliminary knowledge which I have. I've just shared it with you. Doctor was telling, I'll just tell you. I was invited to a function with people who have just got admission in my MBBS seats. 809 minority students who have got admission in the MSET. They have qualified the NEET and they are taking admission in MBBS. So I was telling the most secular profession is the doctor's profession. Because when the patient comes in an emergency, you don't see whether he is a Hindu, Muslim, Christian or anybody, Sikh. Like that, I think it's just the population, just the belief, like previously somebody was talking about the proactive role and how we react. So people have taken proactive role, and of course I believe
10 years is a long time. And there's a lot of jumla bazi which was going on, and I think we have to constantly target that. Unless we come out with the facts, what is happening is there are a lot of people who are well qualified, graduating from very. ये जो इंडियन अमेरिकन फोरम के जानिब से हुआ, और इंडियन अमेरिकन फोरम की ये एसोसिएशन जो एनआरआईस मिलकर अब बनाए थे, और इसका मकसद काफ़ी साफ़ है। जहाँ तक यहाँ की पॉलिटिक्स को सुधारने के लिए कुछ कोशिश कर रहे, जमहूरियत को मजबूत करने के लिए कोशिश कर रहे। आज सब लोगों को बुला के यहाँ सुझाव मांगे थे। हम यही बताना चाहते हैं कि हिंदुस्तान की आज की जो हालत देखते हुए, नज़र में रखते हुए, हम दो मुद्दे हमारे ऊपर सामने है। एक जो है जमहूरियत को मजबूत करना, क्योंकि हर दिन ये जो हमारा दस्तूर का बदलने के लिए बात होते हैं, और हर दिन इसके ऊपर जो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में काम करने वाले लोग सत्ता का गलत इस्तेमाल करते हैं। तो ये माहौल में जमहूरियत को बचाना है। ये एक जिम्मेदारी हमारे ऊपर हालात के वजह से हमारे ऊपर आ गए, और जमहूरियत को मजबूत करने के काम हमारा कंधों पे लेना ही चाहिए। और ये जिम्मेदारी खासकर एनआरआईस के साथ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उन लोगों की बात यहाँ मानते हैं, और ये जिम्मेदारी उठाना है। दूसरी जो है हमारा यहाँ जो फाइनेंशियल पॉलिसीज़, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो है उसके इंडियन अमेरिकन फोरम की जानिब से आज दसपल्ला होटल में मेंबर्स के मीट एंड ग्रीट प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया, जहाँ पर मेहमान खुसूसी के तौर पर आमिर अली ख़ान साहब, जो हालिया MLC और सियासत के एडिटर है, और प्रोफेसर कोदन राम सर, और कोपुला राजू सर, और एम्बेसडर विनोद कुमार, और नेरेला शारदा चेयरपर्सन महिला वुमेन कमीशन, उनको मुख्य मेहमान खुसूसी की हैसियत से उनको बुलाया गया था। और इंडियन अमेरिकन फोरम, जैसा कि आप लोग जानते हैं, एक NRI बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ पर अमेरिका के अंदर क़ायम हुई है। और यहाँ पे इंडियन चैप्टर आज 20 मेंबर्स हमारे इंडियन चैप्टर में ज्वाइन हुए हैं, और उनके साथ मीट एंड ग्रीट का प्रोग्राम था। वहाँ पर इंडियन अमेरिकन फोरम के काम क्या है, किस तरीके के काम इंडियन अमेरिकन फोरम करती है, तो वो आज उनको बताया गया। कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रियम्बल है, सेकुलर सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, उसको बनाए रखने के लिए इंडियन अमेरिकन फोरम मुख्तलिफ महाज पर सोशल मीडिया के ज़रिए पब्लिक में अवेयरनेस और पब्लिक ओपिनियन चेंज के जो प्रोग्राम्स है करती आई है। हालिया असम्बली इलेक्शंस में भी हम लोग इंडियन अमेरिकन फोरम यहाँ पे ग्राउंड में काम करके 65 उम्मीदवारों को हमने इंडोर्स किया। तेलंगाना के वज़ीर पूरम प्रभाकर ने रियासत के मुख्तलिफ गुरुकुल स्कूलों में फूड पॉइजनिंग के वाक़यात पर फ़िक्रमंदी का इजहार किया और ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए फ़ौरी इक़दामात की हिदायत दी। बसूरत दीगर उन्होंने अहदेदारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई का इंतबाह दिया। पूरम प्रभाकर ने अहदेदारों से कहा कि वो इन तलबा के तय ज़िम्मेदारी से काम लें जो पूरे जोश व खरोश के साथ स्कूलों में तालीम के लिए आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि स्कूलों में फूड पॉइजनिंग के वाक़यात दोबारा पेश न आएँ। ఎక్కడైనా మళ్ళీ ఆర్సీఓలను అడుగుతానా, దాని తర్వాత ఎవరైనా డిస్ట్రిక్ట్ ఆఫీసర్ ఎవరైనా రెస్పాన్సిబిలిటీ, మీ స్కూల్లో ఇప్పటికీ డ్రెస్సులు రాకపోయి ఉండేది ఉంటే వారం రోజులు మీరు తెప్పించుకునే జిమ్మేదారి మీది, ఇప్పించే జిమ్మేదారి సైదులు గారికి. ఎక్కడైనా మీరు రిపోర్ట్ చేయకుండా మనం నేను ఇన్స్టిట్యూషన్ పోయినప్పుడు, దాని తర్వాత కొంతమంది ఇవ్వాలనుకున్న బ్లాంకెట్స్ లేకపోతే ఇతర ట్రాక్ షూట్ प्रिंसिपल सेक्रेटरी म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन और अर्बन डेवलपमेंट दारा किशोर ने कहा कि मूसा नदी की साबिक़ा शान को बहाल करना मूसा नदी की तजदीदकारी प्रोजेक्ट का बुनियादी मकसद है। हैदराबाद में मुनक़िदा बैनुल-अक़वामी शहरी वर्कशॉप से खिताब में दारा किशोर ने नदी को साफ़, उसके पानी को पीने के काबिल बनाने से मुताल्लिक़ हुकूमत के अज़ाम पर रोशनी डाली। मूसा रिवर फ्रंट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, फ्रांसीसी तरक्याती एजेंसी और दीगर के इश्तराक के साथ ये प्रोग्राम चन्नारेड्डी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर में हुआ। दारा किशोर ने कहा कि हुकूमत मूसा नदी की शान को बहाल करने के लिए पुरज़म है, इसके साथ साथ इसे तरक्की देना चाहती है।
हैदराबाद 100% सीवरेज ट्रीटमेंट हासिल करने के लिए जनूबी एशिया का पहला शहर बनने की जानिब गामज़न है। तेलंगाना के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लुभट्टी विक्रमार्क और रियासती वज़ीर सिताका ने हरिता प्लाजा बेगमपेट का आज दौरा किया। तेलंगाना चैम्बर ऑफ कॉमर्स के स्टॉल समेत दीगर का उन्होंने इस मौके पर शख्सी तौर पर मुशाहिदा किया। मस्जिद बगदादी टेकनामपल्ली में एसएससी के तलबा की मुफ्त कोचिंग शुरू की जा रही है। तलबा और तालिबात रजिस्ट्रेशन करवाते हुए इन क्लासेस में शिरकत कर सकते हैं। इस सिलसिले में कमेटी के जिम्मेदारान ने मीडिया के लिए बयान जारी किया। एसएससी के तलबा और तालिबात के लिए मुफ्त कोचिंग सेंटर का इंतज़ाम यहाँ पर किया गया है और आज से रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पर जारी किए जा रहे हैं। ख्वाहिशमंद सरपरस्त और तलबा और तालिबात अपना रजिस्ट्रेशन करा के रजिस्ट्रेशन फॉर्म हासिल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला 4 से 5 दिन के बाद क्लासेस का आगाज़ होगा। माहिर असातिज़ा का इंतज़ाम किया गया है और 4 सब्जेक्ट की तालीम दी जाएगी: तेलुगु, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंसेस। मज़ीद इसके अलावा इंतज़ामी कमेटी मस्जिद टेकनामपल्ली की जानिब से चलाए जाने वाले इदारे टेलरिंग सेंटर, हिंदी डिज़ाइनिंग सेंटर और सुबह का मदरसा अरबी का और शाम का मदरसा अरबी का। इसके अलावा हबीब मिल्लत ख़ाइर मुक़र्रना की कोशिशों से और काविशों से यहाँ पर कंप्यूटर सेंटर का भी 12 साल कबल इनेकाद अमल में आया था। उससे भी जो है तमाम बच्चे और बच्चियाँ जामिअतुल मोमिनात की ख़वातीन कॉन्फ्रेंस के ज़िमन में एक तारुफ़ी इजलास हैदराबाद में आज मुनक़िद किया गया। डॉक्टर सिराज रहमान फ़ारूक़ी और जामिअतुल मोमिनात के ज़िम्मेदारान ने इस मौके पर ख़िताब किया। एक ऐसे वक्त में जबकि लोग मोबाइल में ज़्यादा वक्त सर्फ कर रहे हों, उनके लिए पुरसुकून माहौल में लाइब्रेरी की इमारत हो और मुताले के लिए बेहतर माहौल फ़राहम हो, इससे अच्छी बात और कोई नहीं हो सकती। इसी ज़रूरत को पेश नज़र रखते हुए शहर हैदराबाद के इलाके अफजलगंज में वाक़ तारीख़ी और मशहूर स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी की खस्ताहाल इमारत की तज़ीन नौ का काम शुरू कर दिया गया है। हमारे नुमाइंदे फ़हीम अंसारी ने यहाँ लाइब्रेरी का तफसीली दौरा किया और तज़ीन नौ के कामों का जायज़ा लिया। मुताल्लिक़ा ज़िम्मेदारान से बातचीत की। उन्होंने कहा कि अगर हुकाम भरपूर तवज्जो दें तो इस लाइब्रेरी को बेहतरीन शक्ल में ढाला जा सकता है। ज़्यादा लोग बात करने का ज़बान है। ये स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी में पर्शियन बुक्स है, अरबिक बुक्स है, उर्दू बुक्स है, संस्कृत बुक्स है, इंग्लिश बुक्स है और तेलुगु बुक्स है। उर्दू बुक्स आपको मालूम है निज़ाम का हुकूमत का टाइम में उर्दू लैंग्वेज में एक लखनवी उर्दू और दक्कनी उर्दू के बिटवीन में थोड़ा इंटेलेक्चुअल डिबेट चलता था। दक्कनी उर्दू का सेंटर है यहाँ पर स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी। दक्कनी उर्दू का सेंटर है, मगर 10 साल से वो बीआरएस एलियास टीआरएस गवर्नमेंट नया बुक्स लाने के लिए कुछ भी कोशिश नहीं करे और जो बुक्स है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी कोशिश नहीं कर रहे। अब मैं उर्दू बुक्स का ऊपर एक छोटा कमेटी मैं कायम करके वो कमेटी जो बुक्स नया बुक्स उर्दू लैंग्वेज में आ रहे वो बुक्स को उसमें रखने के लिए मैं वो लोग को ऑर्डर्स दिया। मेरे ख्याल से विद इन कमिंग डेज 2-3 महीने में उर्दू बुक्स नया बुक्स लाने के लिए कोशिश करेंगे। और एक बात भी आपसे बोल रहा हूँ, मैं थोड़ा पुराना लाइब्रेरीज है, फॉर एग्जांपल हनुमकोंडा लाइब्रेरी है और निज़ामाबाद लाइब्रेरी है, कामारेड्डी लाइब्रेरी है और सिटी में भी पुराना शहर में भी तो लाइब्रेरीज है। वहाँ पर उर्दू रीडर्स रहते, ज़्यादा जगहों में तेलुगु रीडर्स ज़्यादा रहते, सिटीज़ में ज़्यादा तेलुगु और इंग्लिश रहते। मगर जब पर्टिकुलर माइनॉरिटी पर्टिकुलर मुस्लिम माइनॉरिटी का पॉपुलेशन है वहाँ पर उर्दू पढ़ने वाले, उर्दू लिखने वाले, उर्दू लैंग्वेज एंजॉय करने वाले बहुत लोग हैं। वो लोग के लिए हम कोशिश करेंगे आपका जैसा सीनियर जर्नलिस्ट और जो उर्दू लैंग्वेज के ऊपर अच्छा कमांड है वो लोग को बुला के एक दिन मैं गुफ्तगू रखूंगा यहाँ पर। वो लोग का सलाह है तो वो लोग का सजेशंस लेके जो बुक्स लेना है वो जो बुक्स लाइब्रेरी में रखना है वो रखेंगे। अब रिनोवेशन वर्क तो चल रहा है लाइब्रेरी में, वो वर्क के बाद डेफिनेटली आई एम गोइंग टू कंडक्ट वन गुड मीटिंग। उसमें सब लोग शिरकत लेना है। वो मीटिंग्स में उर्दू लैंग्वेज का ऊपर जिसको कमांड है, उर्दू लैंग्वेज का और उर्दू लैंग्वेज में जो बुक्स आ रहे वो बुक्स का ऊपर जिसको नॉलेज है, इल्म है, वो लोग को बुला के इंशाल्लाह डेफिनेट उर्दू सेक्शन को मैं स्ट्रेंथन करने के लिए कोशिश करूंगा। कितना बजट
इंडियन एयरफोर्स की जानिब से शहर हैदराबाद के उफक पर आज ज़बरदस्त एयर शो का अहतमाम किया गया। हमारे नुमाइंदे सैयद मजहर अली ने ये मनाजिर अपने कैमरे में कैद किए। आइए देखते हैं इसकी चंद झलकियाँ। और बात करेंगे मौसम के हवाले से। खलीज बंगाल में हवा के कम दबाव की वजह से तेलंगाना समेत शहर में कई मुकामात पर हल्की बारिश हुई। शहर हैदराबाद के कई इलाकों में कल रात से ही बारिश का सिलसिला लगातार जारी रहा। राजेंद्र नगर, अतापुर, मेलारदोपल्ली, बंडलागुड़ा, किस्मतपुर, हिमायत सागर, नारसिंगी, गंडीपेट, बंजारा हिल्स, जुबली हिल्स, खैरताबाद, माधवपुर, गचिबौली, हाईटेक सिटी और कुंडापुर और शहर के दीगर इलाकों में बारिश हल्की हल्की जारी रही। इस बारिश से शहरियों को मुश्किल का सामना करना पड़ा। रियासत के कई अजला में घनी कोहर छा गई, जिसकी वजह से मोटरसाइकिल सवारों को दुश्वारियां पेश आईं। महकमा मौसमियात ने पेशकियासी की गई कम दबाव की वजह से आइंदा 3 दिनों तक तेलंगाना में बारिश हो सकती है। वाटर हीटर कॉइल को छूने से बिजली का झटका लग गया, जिसकी वजह से एक नई नवेली दुल्हन की मौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक मंचिरियाल जिले में वाक़या पेश है। महलूक खातून की शनाख्त 21 साला स्वप्ना के तौर पर की गई है। पुलिस ने बताया कि वाक़या मंचिरियाल मंडल में पेश आया और स्वप्ना नहाने के लिए पानी गर्म करने वाटर हीटर पानी की बाल्टी में लगाई थी, तमाम बिजली चली गई। चंद लम्हात बाद वो बाल्टी से हीटर को निकाल रही थी। इस दौरान अचानक बिजली की सप्लाई बहाल हुई, जिसकी वजह से बिजली का झटका लग गया। इसकी अस्पताल मुंतकिली के दौरान मौत वाक़ई हुई। स्वप्ना की शादी सिर्फ 5 दिन पहले सिद्धू से हुई थी। स्वप्ना के बाप की शिकायत पर पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी। शहर हैदराबाद की पुलिस ने जाली वीज़ा रैकेट का एक पर्दाफाश किया है। बैरून मुल्क मुलाजिमतों के बेहतर मौक़े का झांसा देकर मुतादिद अफराद को झांसा देने और धोखा देने पर खातून समेत 2 अफराद की गिरफ्तारी अमल में लाई गई। रुबाई नाज़रीन करेंगे चंद अहम कौमी और आलमी खबरों की जानिब। वफ़द तरमीम बिल के मसले पर मुल्क के कई ईसाई अरकान पार्लिमान ने मुसलमानों की तायद का फैसला किया। ईसाई अरकान पार्लिमान ने दिल्ली में कैथोलिक बिशप कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया के इजलास में कहा कि ईसाई फ़िरक़े को वफ़द तरमीमी बिल पर उसूली तौर पर अपना रुख अख्तियार करना चाहिए, क्योंकि यह आइन में मौजूद अक़लियतों के हुकूक़ को मुतासर करता है। हिंदुस्तान में कैथोलिक ईसाइयों की आला तंजीम CBCI ने 3 दिसंबर को भी ईसाई अरकान पार्लियामेंट की एक मीटिंग तलब की थी, जिसमें तकरीबन 20 अरकान ने हिस्सा लिया, जिसमें ज़्यादातर अपोजिशन पार्टियों से हैं। मीटिंग में शामिल अरकान में तृणमूल कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी के रहनुमा डेरेक ओब्रायन और दीगर भी शामिल थे, जबकि बाद में मरकजी वजीर मुमलिकत जॉर्ज कुरिन भी मीटिंग में शामिल हुए। याद रहे कि वक्फ बिल को लेकर मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी की मीटिंग्स और दौरों के सिलसिले भी अभी जारी हैं। मुल्क के किसान आज भी परेशान हैं। MSP का मोदी ने वादा किया, जिसके बाद किसान एहतजाज से दस्तबरदार हुए थे, लेकिन आज 2 साल गुजर जाने के बावजूद बीजेपी हुकूमत ने अपने वादे को पूरा नहीं किया। कांग्रेस तर्जुमान सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बयान दिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में किसान फिर एक मरतबा जमा हो रहे हैं, लेकिन मोदी किसानों की बात सुनने तैयार नहीं हैं। पूरे उत्तर भारत का किसान दिल्ली कूच कर रहा है। देश के किसान में त्राहिमाम मचा है। देश का किसान 378 दिन पहले दिल्ली के बॉर्डर पर बैठा रहा। आखिर में 3 काले कानून वापस लिए गए इस वादे के साथ कि MSP की गारंटी का कानून लाया जाएगा। अब 2 साल और बीत गए। 298 दिन से एक बार फिर देश का किसान बॉर्डर पर बैठा है। किसान की मांग क्या है कि पैदल शांति प्रिय तरीके से दिल्ली के हुक्मरानों से, मोदी सरकार से वो आकर अपनी मांग की गुहार लगा सकें, न्याय मांग सकें। अन्नदाता किसान, जिसे धरती का भगवान कहा जाता है, उस धरती के भगवान को अब डंडे, लाठी, अश्रु गैस, नश्तर, कीलें और कंक्रीट की दीवारें बनाकर रोका जा रहा है। फिल्म देखने का समय है प्रधानमंत्री जी और पूरी कैबिनेट को, पर देश के किसान की बात सुनने का समय नहीं, जो 298 दिन से बॉर्डर पर यह गुहार लगा रहा है कि वो दिल्ली आकर
झोली फैलाकर अपना अधिकार मांग सके और मोदी सरकार को अपना वादा याद दिला सके जो 2 वर्ष पहले किया था। 700 किसानों की शहादत और लाखों किसानों को अपना अपना घर उजाड़ने के बाद के एमएसपी की गारंटी का कानून बनाया जाए। और अब सीरिया से बड़ी खबर, शाम के सदर बशार अल असद मुल्क से फरार हो गए। दारुल-हुकूमत दमिश्क में बागियों के दाखिल होने के बाद हजारों अफराद ने मरकजी चौक में जश्न मनाया, आज़ादी के नारे लगाए। शामी फौज की कमान अफसरान को इत्तला दी कि बागियों के हमले के बाद बशार अल असद की हुकूमत खत्म हो गई। पेश है ताज़ा हालात के हवाले से सियासत टीवी की ये रिपोर्ट। शाम के सदर बशार अल असद मुल्क से फरार हो गए। दारुल-हुकूमत दमिश्क में बागियों के दाखिल हो जाने के बाद हजारों अफराद ने जश्न मनाया और आज़ादी के नारे बुलंद किए। फौरी तौर पर ये नहीं मालूम हो सका कि बशार अल असद किसी नामालूम मुकाम के लिए रवाना हुए और वो मुकाम कौन सा है, क्योंकि बागियों ने दावा किया था कि वो दारुल हुकूमत में दाखिल हो गए हैं और फ़ौज की तैनाती का कोई इशारा नहीं मिला। ऐनी शाहिदीन ने कहा कि हज़ारों अफराद गाड़ियों और पैदल दमिश्क मरकजी चौक पर जमा हुए और हाथ हिलाकर आज़ादी के नारे लगाए। बागियों ने कहा कि हम शामी अवाम के साथ अपने कैदियों की रिहाई और उनकी जंजीरें टूटने की खबर पर जश्न मना रहे हैं। सदनिया जेल में नाइंसाफ़ी के दौर के खात्मे का ऐलान किया जाता है। सदनिया दमिश्क के मुज़ाफ़ात में वाक़ सबसे बड़ी फ़ौजी जेल है, जहाँ शामी हुकूमत ने हज़ारों अफराद को हिरासत में रखा हुआ था। दारुल हुकूमत पर बागियों के कब्ज़े के बाद शामी एयर के तैयारे ने दमिश्क एयरपोर्ट से उड़ान भरी। तैयारे ने इब्तदाई तौर पर शाम के साहरी इलाके की जानिब उड़ान भरी, जो सदर बशार अल असद के अलवी फ़िरक़े का गढ़ है। ताहम फिर अचानक यूटर्न लेकर कुछ मिनट तक मुखालिफ सिमत में परवाज़ के बाद नक्शे से गायब हो गया। फौरी तौर पर यह भी पता नहीं चल सका कि जहाज़ में कौन सवार था। शाम के सबसे बड़े हिज़्ब इख्तिलाफ के ग्रुप हादी अल बहर शामी के सरबराह ने ऐलान किया कि दमिश्क अब बशार अल असद के बग़ैर है। शामी बागियों ने कहा कि उन्होंने दारुल हुकूमत दमिश्क पर कब्ज़ा किया और असद की हुकूमत के खात्मा का ऐलान किया जाता है। मुसल्लह अपोजिशन ने अपने बयान में कहा कि ज़ालिम बशार अल असद भाग गया, हम दमिश्क को जाबिर बशार अल असद से पाक करार देते हैं। हयात तहरीर शाम के सरबराह मोहम्मद अल जोलानी का कहना है कि दमिश्क में हिज़्ब इख्तिलाफ की तमाम फोर्सेस को सरकारी इदारों पर कब्ज़ा करने से रोक दिया गया, जो सरकारी तौर पर उनके हवाले किए जाने तक साबिक़ वज़ीर आज़म की निगरानी में रहेंगे। अबू मोहम्मद अल जोलानी ने यह भी कहा कि जश्न मनाने के लिए फायरिंग करना ममनू रहेगा। शामी बागियों के रहनुमा अपने बयानात पर अपने कानूनी नाम अहमद अशर के साथ दस्तखत कर रहे हैं, ताकि खुद को अलकायदा के साथ अपने माजी के ताल्लुकात से दूर रखा जा सके। इस कबल असद के वज़ीर आज़म ने कहा था कि वो रियासती इदारों की निगरानी के लिए दमिश्क में मौजूद रहेंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद गाजी अल जलाली ने कहा कि वो अपना घर छोड़ने का इरादा नहीं रखते, वो इस बात को यकीनी बनाना चाहते हैं कि सरकारी इदारे काम करते रहें। उन्होंने शामी शहरियों पर जोर दिया कि वो अवामी अमलाक का तहफ़्फ़ुज़ करें। हमस का कब्ज़ा 13 साला तनाज़े में बागी तहरीक की ड्रामाई वापसी की ताकतवर अलामत है। इन इलाकों को कई साल कबल बागियों और फौज के दरमियान शदीद जंग में तबाह कर दिया गया था। लड़ाई के नतीजे में बागियों को शिकस्त हुई थी और उन्हें ज़बरदस्ती बाहर निकाला गया। बागियों की सरकर्दा जमात हयात तहरीर शाम के सरबराह मोहम्मद जलानी ने हम उस पर कब्जे को एक तारीखी लम्हा करार दिया और जंगजों पर जोर दिया कि वो हथियार डालने वालों को नुकसान न पहुँचाए। बागियों ने शहर की जेल से हजारों कैदियों को रिहा भी कर दिया है। इससे कबल शामी फौज इन कैदियों के दस्तावेजात जलाने के बाद उजरत में वहाँ से फरार हो गई। इससे कबल एक मुजाफाती इलाके में असद के वालिद मरहूम सदर हाफिज अल असद का मुजस्समा भी गिराकर तोड़ दिया गया। शहर के बाहर बागियों ने 24 घंटों में पूरे जुनूब मगरिब में कब्जा कर लिया और अपना कंट्रोल कायम कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सियासत टीवी। और इस दौरान नए मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका को शाम के तनाज़े में मुदाखलत नहीं करना चाहिए। शाम में अपोजिशन फौज ने सदर बशार अल असद की हुकूमत को ख़त्म करने की धमकियां दी। ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि शाम अफरा तफरी का शिकार है, लेकिन ये हमारा दोस्त नहीं है और अमेरिका को इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। पेरिस में फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रोन के साथ ट्रंप ने मुलाकात की और कहा कि हमारी जंग नहीं होती, हमें इसमें मुदाखलत न करना चाहिए। दोहा फोरम से खिताब के दौरान कतर के वज़ीर आज़म अब्दुर्रहमान असानी ने कहा कि वो ट्रंप इंतज़ामिया के साथ मिलकर मसले फ़लस्तीन के हल, जंगबंदी और इससे जुड़े उमूर पर काम कर रहे हैं। उन्होंने जंगबंदी को ज़रूरी और नागुज़ीर करार दिया। Between the previous administration or President Biden current administration, the outgoing one and the incoming one, of course there will be some differences in the themes and the approach that and the way they are approaching things, but we didn't see or recognize any disagreement in on the goal itself to end the war, and that basically was very important for us to understand especially after the election, because
you know, whether we like it or not, it has an impact on the decisions and what's happening on the ground. And it was the contrary. We have seen a lot of encouragement from the incoming administration in order to achieve a deal even before the president come to the office. We hope that the willingness of the parties to engage in a good faith continues in the same manner. And if you look at the gaps and the disagreements, they are not something substantial that really affect the agreement. It's all about the main questions. Is there a willingness to end the war? Yes or no? Is there a willingness to have an exchange deal? Yes or no? Those are two very simple questions with very simple answers. If the answers are yes on both questions, then we have a deal. First factor was really anticipated because of what's happening in Gaza and what we've been actually trying to warn. और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नज़र। कांग्रेस हुकूमत आवाम से किए गए तमाम वादों पर अमलावरी की पाबंद, केसीआर सिर्फ फार्म हाउस तक महदूद। नलगुंडा में मेडिकल कॉलेज का इफ्तिताह करने के बाद चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने आवाम को दिलाया यकीन। इंडियन अमेरिकन फोरम की जानिब से शहर हैदराबाद में हुआ इजलास, MLC आमिर अली खान, प्रोफेसर कोदंडराम और दीगर ने किया खिताब। तेलंगाना के मुख्तलिफ गुरुकुल स्कूलों में फूड पॉइजनिंग के वाक़यात बाद से फिक्रमंदी, दोबारा ऐसे वाक़यात पेश न आएँ। रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर की मुतल्लिक़ा हुक्काम को सख्त हिदायत। वफ़द तरमीम बिल के मसले पर मुल्क के कई ईसाई अरकान पार्लियामेंट मुसलमानों की हिमायत करने तैयार। ईसाई अरकान पार्लियामान ने दिल्ली में कैथोलिक बिशप कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया के इजलास में की मुसलमानों की तायीद। 2 साल गुजर जाने के बावजूद बीजेपी हुकूमत ने किसानों से किए गए MSP के वादे को पूरा नहीं किया। कांग्रेस तर्जुमान सुरजेवाला की मोदी हुकूमत पर शदीद तनकीद है। और शाम के सदर बशारुल असद मुल्क से हुए फरार, दारुल हुकूमत दमिश्क में बागियों का दाखिला, हज़ारों अफराद ने मरकजी चौक में मनाया जश्न आज़ादी। प्राइम टाइम का सिलसिला फ़िलहाल यहीं ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत TV। अल्लाह हाफ़िज़।